Respected speaker of today's session, CA Kailash Sharma sir. Respected Chairman Indore Branch, CA Kirti Joshi ji. Vice Chairman Indore Branch, CA Samkit Bhandari ji. And all members who have joined us in this practical aspects session on Excel. I, CA Ankush Jain, Secretary Indore CA Branch, welcomes you all in this 3-day series on Excel. And today's this series is especially designed for covering all the practical aspects of MS Excel. So without taking further time, I request Chairman Indore Branch, C. Kirti Joshi ji, for his welcome address. Over to Kirti bhaiya. Thank you, Ankush ji. Samkit Bhandari ji, Vice Chairman of Indore CA Branch. Respected Ankush ji, Secretary of Indore Branch. It is my great pleasure and honor to welcome 3 days series on और इंदौर ब्रांच अपने 50th years जो है वो कंप्लीट कर रही है और सीरीज अभी है सो 31st जो है सीए ओलंपिक्स उसको हम क्रिकेट फुटबॉल एंड डिफरेंट बैडमिंटन टेबल टेनिस तो ये सब 31st को है फिर हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी फैमिली आरआरसी है सो सेकंड इवेंट ये है देन नेशनल कॉन्फ्रेंस सो विद दीज वर्ड्स I welcome you all again in this webinar. Over to you, Ankush ji. Over to you, Ankush ji. Thank you, Kirti bhaiya. As we all are aware that today's session subject is reducing reconciliation efforts in GST, and for the same we have very learned speaker CA Kailash Sharma sir. So before starting the session, I am just giving the briefing, his introduction about sir is May 15 qualified chartered accountant. His work in TR Chadda and Lava International Limited, and he is mainly in reporting profile and SAP implementation. And currently he is in practice since last 3 years, and main profile is MIS reporting and automation. So we are very honored to have you as a speaker for today's session. So I request sir to please share your knowledge and practical experience with the audience. Over to you, sir. Thank you so much, Ankush ji and Kirti sir, and all the members of the branch. Thank you for inviting me over here and sharing my knowledge with you all. So, sir, आज का जो हमारा टॉपिक है basically it is a GST reconciliation, because जो GST reconciliation है it is a very time taking task for everyone. हम उसमें डेटा एक्सपोर्ट करके एंड फिर वो मैनुअली उस पर रिकंसिलिएशन स्टार्ट कर देते हैं. इट विल टेक अ ह्यूज ऑफ टाइम, एंड जिसकी वजह से हमारा डेली जो एनालिसिस का टाइम है उसमें टाइम ना लगा के हम मैनुअल वर्क्स पे काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल वी कैन रिड्यूस आवर डेली रूटीन वर्क टाइम, एंड जिसमें हम फिर अपना एनालिसिस पॉइंट पार्ट पे जो हमारा मेन लॉजिक है, जिस चीज के लिए सारे के सारे चार्टर्स जाने जाते हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम एनालिसिस करना अच्छा जानते हैं. So we have time for that thing. So with the help of these Excel हम वो सारा का सारा टाइम वहां से रिड्यूस करके अपना जो मेन कोर एरियाज हैं हम उसके ऊपर डिवोट कर सकते हैं. So जो रिकंसिलिएशन का टाइम सेवर है आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन रिड्यूस आवर टाइम. So first of all I will share my screen. तो सर I think मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes sir. तो सर आपके पास जो आपको करना क्या है, सबसे पहले जीएसटी का डेटा है तो हमारे पास दो तरीके से डेटा होगा. वन इज फ्रॉम दी परचेज रजिस्टर, जिसको मैं कहूंगा जो हमारे पास मैनुअल हम इनवॉइसेस मेंटेन करते हैं रिकॉर्डिंग, एंड सेकंड वन इज दी 2B. अब सर हमारे पास दो तरीके से डेटा हो सकता है, आइदर वी हैव फ्रॉम दी 2B और 2A, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द 2B हम मंथली वर्किंग करने लग गए हैं रिकंसिलिएशन, सो दैट हमें उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम 2B की जब रिकंसिलिएशन करते हैं
तो इस मंथ में जो भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट मंथ, और फिर वो कैरी फॉरवर्ड करके दूसरी शीट में हम फिर पेस्ट करते हैं, और वो टाइम टेकिंग टास्क लगता है। तो उस चीज से बचने के लिए भी मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि हमें फॉर द कंप्लीट ईयर हम इसी एक शीट को कैरी फॉरवर्ड करें, इसके अंदर डेटा पुट करते रहें, और आपका डेटा सारा का सारा फ्लो करेगा उसी तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमें एक बेसिक शीट बना रखी है सर, तो हमें ये बेसिक डेटा डालना है। आप बेसिक डेटा के अंदर देखेंगे सर, ये शीट तो बेसिक है, इसमें हमें ये चीज चाहिए, मतलब इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर जीएसटी नंबर, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये बेसिक कॉलम है जो हर किसी के पास इजीली अवेलेबल होंगे फ्रॉम दी परचेज रजिस्टर एज वेल और फ्रॉम दी टू बी डेटा। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे एक मंथ का कॉलम इंसर्ट करना है। मंथ के कॉलम में हमें क्या डालना है सर, मंथ के कॉलम में हमें यहाँ पे डालना है ये किस मंथ की रिकंसिलिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने अभी अप्रैल मंथ का डेटा पिक किया, तो आपको यहाँ पे अप्रैल मंथ डाल देना है, सो दैट जिस मंथ की रिकंसिलिएशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम उस मंथ पे बात करें। अगर आप ईयर वाइज बात करते हैं तो वी कैन टेक ईयर एज वेल, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मंथ का कॉलम डाल देना है, एंड आफ्टर दैट मैं फाइनल इनवॉइस नंबर पे अभी थोड़ी देर में आता हूं। देन आफ्टर दैट एक कॉलम है हमारे पास कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास दो तरीके से हो सकती है। हमारे पास जो डेटा है उसका मुझे यहाँ पे सोर्स लिखना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास डेटा होगा फ्रॉम द टू बी, ये मैंने सारे टू बी के डेटा डाल दिया, और जितना टू बी का डेटा था मैंने उसके आगे लिख दिया एज पर टू बी। एंड आफ्टर दैट जितना मेरा परचेज रजिस्टर का डेटा होगा मैं उसके आगे सबके आगे लिख दूंगा एज पर परचेज रजिस्टर। तो ये बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी है। ये बेसिक डिटेल डालने के बाद अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है सर, जब भी हम कोई डेटा, हमें जो रिकंसिलिएशन बनानी है, मैं पुरानी रिकंसिलिएशन को डिलीट मार देता हूं। जैसे अब मैं आपको बता देता हूं पहले रिकंसिलिएशन कैसे हमारी फ्लो करेगी। जैसे ही आपने रिकंसिलिएशन डाली, आपको अपना डेटा सिर्फ और सिर्फ, मैंने नया डेटा पेस्ट किया और सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेश करना है पिवट को, सिर्फ रिफ्रेश करेंगे एंड ऑल आपका सारा का सारा रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगी। तो वो हमें रिफ्रेशिंग करनी है और सारा कुछ अपना आप होगा। तो सिर्फ हमारा जो डेटा होगा हमें यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करना होगा। तो मैं एक बारी के लिए पुरानी रिकंसिलिएशन को डिलीट कर देता हूँ, सो दैट हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो हमें बेस डेटा बना लेना है। अब सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा किसी भी बेस डेटा के अंदर ऐड करते हैं तो हमें सारे के सारे फॉर्मूलेस को चेंज करना पड़ता है। फॉर्मूलेस चेंज हमें क्यों करने पड़ते हैं सर, कि वो जो हमने फॉर्मूला लगाया होता है वो अप टू दैट डेटा होता है जो हमारा अर्लियर डेटा होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपने फॉर्मूलेस को चेंज करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर, हमारा डेटा दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द टेबल फॉर्मेट। अब सर टेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप देखेंगे मेरा डेटा भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है, और जब भी टेबल फॉर्मेट में हमारा डेटा होगा तो हमारे पास ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉलम दिखाई देगा टेबल डिजाइन का। यू कैन सी ओवर हियर टेबल डिजाइन। तो अब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूं सर। आपका डेटा है ये मेरा, अब देखेंगे आप, ये बेसिक डेटा है जिसके अंदर ऊपर टेबल डिजाइन नहीं आ रहा, इट मींस ये टेबल में कन्वर्टेड नहीं है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है सर, जस्ट कंट्रोल एंड टी, कंट्रोल के साथ हमें टी प्रेस करना है। टी, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे मेरा कंप्लीट रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट इट विल आस्क माय टेबल हैज हेडर। तो अगर आपके टेबल में हेडिंग्स हैं देन यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो आपको ओके कर देना है। तो अब देखेंगे आपके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना बेस डेटा प्रिपेयर करना है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमें मंथ का कॉलम डालना है कि किस मंथ की हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, मतलब टू बी किस मंथ का है एंड परचेज रजिस्टर किस मंथ का है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है कि हमारा कैटेगरी कौन सा है, कि इफ इट इज एज पर द टू बी और इफ इट एज पर परचेज रजिस्टर। सिर्फ दो कैटेगरी लेनी है सर, इसके अलावा हमें कोई कैटेगरी नहीं लेनी। तो सबसे पहले हमारा ये बेस डेटा रेडी है।
देन इसके बाद हमें क्या करना है सर, इसका पिवट टेबल बनाना है। अब पिवट बनाने के लिए हमें क्या करना है सर, इंसर्ट में जाएंगे एंड देन पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क, अभी तक सर हम पिवट बनाते थे तो वहां पे हमारी रेंज आती थी कि A1 से लेकर पर्टिकुलर सेल तक, वो एक रेंज आती थी। अब आप देखेंगे यहाँ पे टेबल का रेफरेंस दे रहा है, तो इट मींस जैसे ही इस टेबल के अंदर कोई नया डेटा आएगा वो पिवट की रेंज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमें बार बार अपना पिवट की रेंज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने पिवट बना दिया, मैं इसको नाम दे देता हूं Zico 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सर, आपका सप्लायर जीएसटी नंबर, सप्लायर जीएसटी नंबर आपको रोज में डालना है। रोज में हमें इसलिए डालना है ताकि हम रो वाइज टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। एंड देन उसके बाद जिस भी चीज के ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन पार्ट हमारा जितने भी वैल्यूज पार्ट हैं उनको पिक करना है। तो आइटम टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एंड एसजीएसटी को हमें यहाँ पे वैल्यूज में डाल देना है। एंड जो हमने फाइनल ये कैटेगरी का कॉलम बनाया था कि ये दो पार्ट हमने जो बताए थे कि सोर्स हमारा एक हमारा है एज पर टू बी और एक हमारा है एज पर परचेज रजिस्टर, तो वो कैटेगरीज हमें कॉलम में डालनी है। इससे क्या होगा सर, हमारे पास एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के ऊपर, एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के ऊपर वो आपको साइमल्टेनियसली दिखाएगा कि ये हमारा एज पर टू बी की वैल्यू कितनी है और एज पर परचेज रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, सो दैट आप साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हो। आपको दूसरी शीट को कहीं भी रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अभी तक हम यही करते थे, हम दो शीट अलग अलग रखते थे और दोनों शीट को रेफर करके टिकिंग कर रहे होते थे। तो अब उससे हमारा सारा का सारा टाइम सेव हो जाएगा और हमें यहाँ पे फ्रंट एंड पे ही सामने वैल्यूज दिख जाएंगी कि क्या क्या चीजें हमारी मैच हो रही है और किस में डिफरेंस है। ओके सर, हमें टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सर कभी भी, इसलिए हमें क्या करना है, डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल में टोटल्स को ऑफ कर देंगे, सब टोटल में ऑफ कर देंगे। एंड हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में पिवट को रखें सो दैट आपका डेटा अरेंज रहेगा टेबुलर फॉर्मेट में। ये हमारा डेटा हो गया। आफ्टर दैट हमें क्या करना है सर, एक मंथ का कॉलम, जो हमने मंथ का कॉलम डाला था, मंथ का कॉलम हम फिल्टर में डालेंगे। फिल्टर क्या करता है बेसिकली सर, फिल्टर 100% डेटा को, जैसे अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूं, मैं अगर किसी भी एक चीज के ऊपर फिल्टर लगा लेता हूं तो विजिबल डेटा सिर्फ और सिर्फ हमें उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का दिखाई देगा। तो इन दिस सेम वे जब मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया तो फिल्टर में भी सिर्फ जिस मंथ को आप सिलेक्ट करेंगे, पिवट भी सिर्फ उसी मंथ का डेटा दिखाएगा, बाकी सारा डेटा हिडन रहेगा। तो आप यहाँ पे मंथ का पिवट में डाल देंगे और अभी हमारे पास सिर्फ अप्रैल मंथ का डेटा है तो मैं यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट कर लूंगा। ओके सर, एंड आपको ये पिवट फ्रंट फर्स्ट पिवट आपकी रेडी है, फर्स्ट पिवट रेडी है। अंकुश सर, किसी के भी डाउट हो तो हम साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, अगर किसी के कोई डाउट आते हैं बीच में तो। ठीक है, आफ्टर दैट हमें क्या करना है सर, हमें यहाँ पे अब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमें किस चीज का निकालना है सर, हमें डिफरेंस हमें यहाँ पे निकालना है टैक्सेबल वैल्यू का, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमें यहाँ पे ये डिफरेंस निकाल देना है और सर हम इसी डिफरेंस को नीचे ड्रैग कर देंगे। अब हमने इसी डिफरेंस को नीचे ड्रैग कर दिया। अब आप देखेंगे सर, आउट ऑफ द टोटल 35 पार्टीज, आउट ऑफ द टोटल 35 पार्टीज हमारे कितने
पार्टीज तो हमारी फ्रंट एंड पे ही मैच हो गई। इतनी पार्टीज हमारी फ्रंट एंड पे ही मैच हो चुकी है। ये मैं ले लेता हूं, तो आप देखेंगे 18 पार्टीज तो हमारी फ्रंट एंड पे मैच होगी, जिसके ऊपर हमें वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आउट ऑफ द 30 पार्टीज हमारी 18 पार्टीज तो फ्रंट एंड पे ही रिजेक्ट हो गई कि जिसपे हमें वर्किंग नहीं करनी है, एंड बैलेंस पे अब हमें वर्किंग करनी है। उसको भी हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, मैं वो भी अभी दिखाता हूं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो सर पहले हम वो टेकअप कर लेते हैं। तो अंकुर जी, किसी के भी कोई डाउट हो तो हम वो टेकअप कर सकते हैं सर साथ के साथ। कीर्ति सर, मेरी वॉइस क्लियर है ना? कहीं वॉइस में तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, क्लियर है सर, हाँ जी। एंड देन सर ये हमारा वॉइस फर्स्ट, क्लियर आ रही है। हाँ, फ्रंट एंड पे हमारा काम हो गया सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है सर? अब फॉर दी क्लैरिफिकेशन हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब फॉर्मूला हमें क्या बनाना है सर? हम फॉर्मूला ये बनाएंगे कि अगर मेरा डिफरेंस आता है देन इट विल से मिसमैच, अदरवाइज इट विल से मैच। तो फॉर दैट पर्पस जब भी हमारे पास कोई लॉजिकल फॉर्मूला बनाना होता है कि किसी कंडीशन बेस्ड है, देन वी शुड यूज इफ लॉजिकल फॉर्मूलाज, इफ फॉर्मूलाज। तो हमारे पास एक इफ का फॉर्मूला है। इफ का फॉर्मूला क्या करता है सर? आपका एक लॉजिकल टेस्ट लेता है। लॉजिकल टेस्ट में क्या दिखना है आपको? कंडीशन लिखनी है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। तो हमेशा दो ही, या तो आपको जो भी कंडीशन होगी उसमें या तो हाँ होगा या ना होगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर मेरा टोटल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 है, अगर मेरा टोटल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 है, तो अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है? वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? मैच। अगर वैल्यू फॉल्स है, मतलब वो 0 नहीं है, देन आपको क्या लिखना है? मिसमैच। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे मैंने मिसमैच लिखा, इसने मेरे डेटा को डबल इन्वर्टेड कोमा में लेके आ गया। तो सर जब भी हम कोई टेक्स्ट किसी फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वी शुड पुट आवर टेक्स्ट इन द डबल इन्वर्टेड कोमा। तो जब भी हम कोई टेक्स्ट को फॉर्मूले में लिखेंगे तो हमें उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। तो आपने देखा यहाँ पे मिसमैच लिख दिया और नीचे इसको ड्रैग करता हूं तो ये मैच लिख देगा। लेकिन अब आप देखेंगे अगर मैं मिसमैच वाले देखता हूं तो उसमें ये 0.24 पैसा भी मिसमैच बता रहा है। लेकिन सर 20 पैसा, 24 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया तो हम वैसे भी इग्नोर मार देते हैं। तो हमें इसको इग्नोर करने के लिए क्या करना है? तो इसको इग्नोर करने के लिए वी शुड कीप अ टॉलरेंस लिमिट ओवर हियर। अब सर टॉलरेंस लिमिट आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, वट एवर दी लिमिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 रुपीज ले ली। तो अब आप क्या करेंगे, जहां पे आपने इज इक्वल टू लिखा था वहां पे मैं लिखूंगा लेस देन माई टॉलरेंस लिमिट, माई टॉलरेंस लिमिट। और इसमें मैं सर डबल डॉलर लगाऊंगा। डॉलर क्यों लगाऊंगा? डॉलर लगाने का लॉजिक ये होता है सर कि जब भी मैं फॉर्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो वैल्यू जो है मेरी N1 है, जिसके अंदर मैंने टॉलरेंस लिमिट लिखी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने रो से पहले एंड कॉलम से पहले डॉलर लगा दिया, मतलब ये फ्रीजिंग कर दी है। अब ये चेंज नहीं होगी जब भी मैं फॉर्मूले में कॉपी पेस्ट नीचे करूंगा। तो अब आप मिसमैच देखेंगे तो आप में वो यहाँ पे वो 0.24 तो नहीं आ रहा, लेकिन एक गलती हो गई। गलती क्या हुई सर? इसने जितने भी नेगेटिव वैल्यूज थी उसको भी मैच कर दिया, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी उसको भी मैच कर दिया, बिकॉज वो पॉजिटिव 5 रुपीज से कम है। तो सर हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए? हमें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखनी है, सिंबल्स तो देखना ही नहीं है।
तो फॉर दैट पर्पस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है सर? अब आपके पास तरीके हैं कि सर आप मल्टीपल फॉर्मूले लगा सकते हो कि इफ दिस इज लेस देन नेगेटिव वैल्यू है तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाओ एंड ऑल। वो मल्टीपल काम नहीं करना, हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे सर, एबीएस। मैं आपको पहले बता देता हूं, यहाँ पे एबीएस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एबीएस, एबीएस क्या करता है सर? रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन, मतलब उसके सिंबल्स को इग्नोर मार देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है बट उसको वो पॉजिटिव दिखाएगा। तो सेम फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना है एंड जहां पे हमने सम लिया था वहां पे मैं एबीएस लगाऊंगा एंड इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे सर इसने पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज में डिफरेंसेस दिखाने स्टार्ट कर दिए। और जहां पे भी वो 0.24 का जो डिफरेंस था उसने उसको मैच दिखा दिया। तो आप लिमिट अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि 2 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं। तो फर्स्ट काम हमें ये करना है। तो यहां तक किसी के कोई डाउट है तो सर हम ले सकते हैं। कीर्ति सर यहां तक किसी के कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हेलो हेलो कीर्ति जी, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो हम ले सकते हैं सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, वॉइस क्लियर आपकी। सर, यदि डाउट्स मेंबर्स को रहेंगे तो वो चैट बॉक्स में पुट कर देंगे, तो एक बार आप वहां से भी अपन ले सकते हैं डायरेक्टली। श्योर सर, श्योर। तो हमारे पास यहाँ पे सर बेस हमें ये करना है। अब इसके बाद जिस वैल्यूज को हमें मैच हो गया उस पे तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे बेस डेटा के अंदर क्या करेंगे सर? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है सर वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है सर? वी लुकअप, अब मुझे ये चेक करना है क्या इस जीएसटी नंबर के ऊपर मुझे वर्किंग करनी है या नहीं करनी। तो मैं इस जीएसटी नंबर को एक बारी के लिए यहां पे जाके सर्च करता हूं। तो आपने देखा इस जीएसटी नंबर को ये मिसमैच बता रहा है। तो मुझे ये चेक करना है किस जीएसटी नंबर के ऊपर वर्किंग करनी है, किस जीएसटी नंबर के ऊपर वर्किंग नहीं करनी है। तो वी लुकअप हम यूज कर सकते हैं। वी लुकअप कैसे लगाना है सर? वी लुकअप में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है सर? किस चीज को हमें ढूंढना है। तो यहां पे हमें जीएसटी नंबर को ढूंढना है इन माई मास्टर डेटा, मतलब रिको के अंदर। तो जीएसटी नंबर अब ढूंढना किसके अंदर है? तो सर वी लुकअप की एक प्रॉब्लम ये है कि जिस भी चीज को आपको ढूंढना है दैट शुड बी दी फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल अरे। वो टेबल अरे का पहला कॉलम होगा। सर मैं शीट का पहला कॉलम नहीं बोल रहा, मैं टेबल एरे का पहला कॉलम बोल रहा हूं। मतलब जितना भी डेटा आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे उसमें पहला कॉलम मेरा टेबल एरे का होना चाहिए। वो पहला कॉलम वो होना चाहिए जिसके अंदर मुझे वो लुकअप वैल्यू मिलेगी। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम वो होती है इसके अंदर कि हम लेफ्ट टू राइट तो सर्च कर सकते हैं लेकिन राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं कर सकते। वी लुकअप की प्रॉब्लम है सर ये। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल फॉर्मुलेज, हम इंडेक्स मैच भी यूज कर सकते हैं और एडवांस जाते हैं तो हमारे पास और भी फॉर्मुलेज एक्स लुकअप एंड ऑल वो आ गए, वो ऑफिस 365 में चलते हैं, तुम वो टेकअप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये कर देना है एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है सर? इसके बाद हमसे पूछता है ये कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है सर? आप देखेंगे यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर फर्स्ट कॉलम है। इस फर्स्ट कॉलम से के बेस पे कौन से कॉलम की वैल्यू आपको पिक करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 10 12 13 14 15 टोटल हमें 15th कॉलम की वैल्यू हमें पिक करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? कॉलम इंडेक्स नंबर में
15 बिकॉज मुझे 15th कॉलम की वैल्यू पिक करनी है एंड देन एग्जैक्ट मैच चाहिए या ट्रू चाहिए तो हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अप्रोक्सीमेट मैच का डिफरेंट यूज है सर, वो भी टाइम बचता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 0 एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे सर हर जीएसटी नंबर के आगे इसने मुझे ये बता दिया क्या ये मेरा मैच है या नहीं है। अगर मिसमैच है तो मुझे इसके ऊपर वर्किंग करनी है, अगर मैच है तो मुझे वर्किंग नहीं करनी है। ओके, लेकिन सर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी और उसको ठीक कैसे करना है, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी सर, अभी तो हम 1 मंथ का काम कर रहे हैं, लेकिन जब सेकंड मंथ की रिको आएगी तो वो अप्रैल वाले के मतलब जब मैं मई की रिको करूंगा तो मुझे मैच बस वो मई के ऊपर काम करना चाहिए, वो अप्रैल के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए सर, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, दोबारा से मैं इसी के अंदर एक फॉर्मूला लगाऊंगा कि इफ, मैं यहाँ पे पहले यहाँ दिखा देता हूं, तो इफ मैं क्या कहूंगा सर, अगर दिस मंथ, अगर मेरा जो मंथ वाला कॉलम है वो मेरा रिको मंथ, जो मेरी रिको की मंथ है उससे मैच करता है, मतलब मेरा जो डेटा का मंथ है प्लस जो मेरी रिको की मंथ है वो दोनों मैच करते हैं, तब तो उसको वी लुकअप लगाना चाहिए, तब तो वो वी लुकअप लगा के मैच मिसमैच लिखे। लेकिन अगर वो मैच नहीं करता, मतलब मैं रिको कर रहा हूं मई मंथ की और मेरा जो बिल है वो अप्रैल का है और अप्रैल में फाइनल हो चुका, तो मुझे उसको कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं वहां पे कोई भी फॉर्मूला, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा सर, ब्लैंक। ब्लैंक के लिए हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ पे इसने मिसमैच दिखा दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसको मई 21 करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसको मई 21 करा तो यहाँ पे उसने उसको ब्लैंक कर दिया, मतलब कुछ नहीं दिखा रहा, तो मुझे यहाँ पे वर्किंग भी नहीं करनी है। तो सर यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना है। तो मुझे क्या करना है सर, इफ मंथ कॉलम इज इक्वल टू रिको मंथ, और मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, इन दैट केस मुझे वीलुकअप लगाना है, और अगर वो सेम नहीं है तो मुझे वीलुकअप नहीं लगाना। तो जैसे ही मैं सर इसको यहां पे मई 21 करूंगा, यहां पे ये ब्लैंक दिखा देगा, तो मुझे इस पे वर्किंग करने की, बिकॉज ये तो अगले मंथ का या कोई डिफरेंट मंथ का है जिसकी मैं रिको कर रहा हूं, तो मुझे इसमें कोई काम करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो मैं उस टाइम पे काम करूंगा जिस टाइम की उस टाइम पे रिको कर रहा हूँ। तो यहां तक हमें काम करना है। ये जो फाइनल इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाया था, ये फाइनल इनवॉइस नंबर का कॉलम जो है अब मेरी रिक्वायरमेंट है, और मुझे क्या करना है सर, ये फाइनल इनवॉइस नंबर को कॉपी करना है और सारे नंबर यहाँ पे एज इट इज पेस्ट स्पेशल कर देना है। जब आप देखेंगे सर कुछ डेटा मेरा, ये देखिए ये डेटा मेरा यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, और एरर में क्या बोल रहा है, द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय एन अपोस्ट्रोफी, मतलब ये टेक्स्ट के अंदर कन्वर्टेड है। तो जब भी मेरा डेटा किसी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होता है तो मेरा मोस्ट ऑफ द डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, या आपने देखा होगा सर जब टैली से कोई डेटा एक्सपोर्ट मारते हैं तो उस टाइम पे कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन होती नहीं है, बिकॉज वो आपका जो सेल है, वो जो डेटा है दैट इज इन द टेक्स्ट फॉर्मेट। ये बहुत बार हमें प्रॉब्लम आती है कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, इसलिए हमें इश्यूज क्रिएट होते हैं कि हम उसको रिको नहीं, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते उसके ऊपर। तो उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं सर, यहाँ पे डेटा में जाना है, सारा डेटा सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाना है एंड टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम को आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और कुछ नहीं करना और फिनिश कर देना है। तो आप देखेंगे सारे नंबर आपके ऑटोमेटिकली, सारा डेटा आपका टेक्स्ट से नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, देन आपको क्या करना है सर, अगेन इसका पीवट बनाना है, सेकंड पीवट बनाऊंगा सर अब मैं यहाँ पे।
एक पिवट हमने बना दिया था, अब दूसरा पिवट हम बनाएंगे, उसको मैंने नाम दे दिया फाइनल रिको। सेम डेटा सर, जैसे हमने पीछे डेटा लेके आया था वही डेटा मैं यहाँ पे अगेन पिक करूंगा, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें सर, जो पीछे किया हमने वही काम करेंगे दोबारा से। एंड कैटेगरी को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। लेकिन सर अभी तक जो मैंने काम किया वो मैंने काम किया जीएसटी नंबर के बेसिस पे, लेकिन अब मुझे जो काम करना है मेरे को जीएसटी नंबर के बेसिस पे नहीं करना, अब मुझे इनवॉइस पे काम करना है, बिकॉज मैं जीएसटी नंबर के बेसिस पे तो काम कर चुका। ठीक है सर, तो अब मुझे यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी डालना है, लेकिन मैं इनवॉइस नंबर डालूंगा फाइनल इनवॉइस नंबर, जो मैंने अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। तो मैं यहाँ पे फाइनल इनवॉइस नंबर डालूंगा। एक सेकंड, हाँ फाइनल इनवॉइस नंबर डालने हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जीएसटी नंबर एंड देन उसी के नीचे फाइनल इनवॉइस नंबर भी आ रहा है। तो इसको टेबुलर फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे सर जीएसटी नंबर एंड देन उसके आगे इनवॉइस नंबर आ रहा है। ठीक है सर, तो आपने ये काम कर दिया, देन कुछ नहीं करना सर, ये सेम जो यहाँ पे फॉर्मूले लगाए थे वही फॉर्मूले दोबारा से कॉपी करेंगे। कुछ डिफरेंट फॉर्मूले नहीं लगाने सर, हमें वही फॉर्मूले लगाने। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सिंपल वही फॉर्मूले लगाए हैं जो पीछे लगाए थे, और ये यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट लिखी थी, मैं वो टॉलरेंस लिमिट लिख देता हूँ, और इसको मैं पीछे से ही लिंक कर देता हूं ताकि एक जगह चेंज होए तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो आप देखेंगे सर आउट ऑफ द 35 पार्टीज, आउट ऑफ द 35 जीएसटी नंबर्स, 18 जीएसटी नंबर तो मेरे फर्स्ट एंड पे ही खत्म हो गए थे। उसके बाद जब मैंने 17 जीएसटी नंबर पे बात करी तो उसके टोटल 90, मतलब 90 इंटू 2 हमारे पास 180 लाइन आइटम्स थे, मतलब बिकॉज जीएसटीआर 1 और 2 भी के अंदर होगा, तो उसमें से 50 लाइन आइटम्स तो वैसे फर्स्ट एंड पे ही एक लॉस हो गए। अब मुझे तो काम सिर्फ और सिर्फ इन पे करना है 37 पे, अब मुझे 37 लाइन आइटम पे काम करना है, बाकी तो मेरे पहले ही खत्म हो गए। जहां हम इतने बल्क डेटा पे काम करते थे, विद द हेल्प ऑफ दिस हमारे पास जिस पे हमें वर्किंग करनी है वो डेटा साइज काफी कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे सर यहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरा जीएसटी नंबर जैसे रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर आपको रिपीट करना है तो डिजाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट में रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, तो आप देखेंगे सब मेरा डेटा ऑटोमेटिकली रिपीट हो गया। ठीक है सर, और कई बार ये आपका डेटा ऐसे एरर दिखाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर, हम इसका नंबर फॉर्मेट में जाके इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, या और यहां से इसको 0, तो ये भी कर सकते हैं हम। तो अब देखेंगे सर हमें इतने पे काम करना है, लेकिन सर मुझे इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज मुझे तो अब यहाँ पे मैंने मिसमैच तो लिख दिया कि डिफरेंस है, लेकिन मुझे तो ये चीज चाहिए डिफरेंस किस तरीके का है, कि क्या ये डिफरेंस मेरा वो है जो परचेज रजिस्टर में नहीं है, या मेरा 2B में नहीं है, या मेरा अमाउंट में डिफरेंस है। मुझे तो ये रीजन चाहिए ना, मुझे खाली मिसमैच थोड़ी ना चाहिए। अगर मैंने मिसमैच दे दिया तो आपको फिर काम करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी रीजन क्या है, तो मुझे रीजन भी आइडेंटिफाई करके देना है। तो रीजन के लिए अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाना है, फाइनल रिमार्क्स। अब फाइनल रिमार्क्स हमारे क्या क्या होंगे सर, एक फाइनल रिमार्क्स होगा मैच है,
कि वो मैच हो रखा है, कहीं कोई इशू नहीं है। एक होगा नॉट इन टू बी, कि आपको परचेज, आपके पास बिल तो है बट टू बी में नहीं है। एक होगा नॉट इन पी आर, मतलब वो टू बी में आ गया, पार्टी ने डाल दिया बट आपके पास बिल नहीं डाला हुआ आपने। अब उसका कुछ भी रीजन हो सकता है कि इट मे बी पॉसिबल आपके पास इनवॉइस नहीं आया, या आपसे मिस हो गया, या आपके डेटा में नहीं है, आपने एसएपी में डाल दिया या सिस्टम में डाल दिया, कोई रीजन की वजह से आप उसको नहीं ले पाए, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या थर्ड डिफरेंस होगा कि टू बी में भी नहीं है, टू बी में भी है, परचेज रजिस्टर में भी है, तो क्या होगा सर, दोनों में है तो और फिर भी डिफरेंस है, तो इसका मतलब आपके बिल की एंट्री में कोई दिक्कत है, आइदर बाय योर साइड या सप्लायर साइड, किसी एक पर्सन ने कोई ना कोई गलती करी हुई है, तो हमें उस गलती को सुधारना है। तो अब जिसकी भी गलती है हम उसको चेस करके उसको ठीक करा सकते हैं। तो मेरे पास यही 4 रीजन हो सकते हैं। इस 4 रीजन के अलावा मुझे कोई 5वां रीजन नहीं समझ आता। अगर आप लोगों को आता है तो हम वो भी टेकअप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अब मुझे वो फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? इफ, अगर मैं कहता हूं अगर ये मेरा मैच है, अगर मैच है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं। मैं इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सर हमारा रिमार्क्स का कॉलम हमने पहले डाला था वो यहाँ पे फिल्टर में डाल देंगे, और फिल्टर में डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम मिसमैच ले लेंगे, तो हमारे पास वही डिफरेंसेस दिखाएगा जो पीछे मिसमैच आए थे, बाकी सारे हमारे वैसे भी हट जाएंगे। ठीक है सर, अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इफ दिस इज इक्वल टू मैच, अगर ये मैच है, बट मुझे किस में लिखना होगा सर? डबल इन्वर्टेड कोमा में। इफ दिस इज इक्वल टू मैच, अगर मैच है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को भी मैच है। लेकिन अगर मैच नहीं है तो मुझे क्या चेक करना है? इफ, फिर मुझे दोबारा से चेकिंग करनी है। मैं कहूंगा क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब टू बी वाली वैल्यू 0 है? आपने कहा हाँ वो 0 है, तो इसका मतलब अगर हाँ तो आप क्या कहेंगे? वो नॉट इन टू बी है, मतलब टू बी में नहीं है तभी तो वहां पे 0 आएगा सर। अगर टू बी में वैल्यू 0 नहीं है तो क्या चेक करना है? तो आपने कहा फिर दोबारा से चेकिंग करना, क्या परचेज रजिस्टर वाली वैल्यू 0 है? अगर हाँ तो आप क्या कहेंगे? नॉट इन पी आर। लेकिन आप कहते हैं सर वो टू बी में भी है, परचेज रजिस्टर में भी है, तो क्या बच गया? तो आप कहेंगे अमाउंट डिफरेंस, और इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है सर, तो आपको ये सारे रीजन दे देगा कि ऐसा क्या रहा रीजन जो यहां पे मिसमैचेस आ रहे हैं। ठीक है सर। अब उसके बाद हमें क्या करना है सर? यही रिमार्क्स मुझे अपने बेस डेटा में भी लेके आना है। अब बेस डेटा में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे यहाँ पे कॉन्कैट बनाना पड़ता है, मतलब जो डेटा को मर्ज करना पड़ता है। वो क्या क्या है? एक जीएसटी नंबर एंड इनवॉइस नंबर, इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। अब वो मैंने मर्ज क्यों किया? मैंने एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करी है सर। यूनिक वैल्यू क्यों क्रिएट करनी पड़ी सर? मुझे यूनिक वैल्यू इसलिए क्रिएट करनी पड़ी बिकॉज कि हो सकता है एक इनवॉइस नंबर दो डिफरेंट पार्टी का सेम मिल जाए आपको, तो वो वी लुकअप आपका वहां पे एरर ना दे, इसलिए मैंने वहां पे एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर दी। और जैसे हमने वी लुकअप लगाया था पहले, वही वी लुकअप यहां पे हम दोबारा से लगाएंगे, लेकिन कल वही काम करते हुए पहले हम क्या देखेंगे? इफ चेक करेंगे सर कि क्या ये मेरा मंथ इज इक्वल टू मेरा रिको मंथ से मैच करता है। अगर रिको मंथ से मैच करता है तो चेक करना है, फिर दोबारा से इसको एक एक चेकिंग करनी पड़ेगी। सर वो चेकिंग क्या होगी? क्या ये मैच है?
क्योंकि मैच वाला डेटा तो सेकंड पिवट में पहुंचेगा ही नहीं सर, बिकॉज हम तो वहां पे वर्किंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ मिसमैच के ऊपर। तो अगर वो मैच है तो मुझे यहां पे मैच लिखना है, अदरवाइज अदरवाइज मुझे यहाँ पे वी लुकअप लगाना है। अब वी लुकअप के लिए मुझे वैल्यू क्या ढूंढनी है? अब मुझे ढूंढना क्या था सर? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है क्या ढूंढना है। तो आपको इस डेटा के अंदर ढूंढना है, तो यहाँ पे तो आपका इनवॉइस नंबर और जीएसटी नंबर का एक मर्ज था, तो वही मुझे लुकअप वैल्यू यहाँ पे भी मर्ज करनी पड़ेगी। जीएसटी नंबर एंड इनवॉइस नंबर, इन दोनों को मुझे मर्ज करना पड़ेगा और फाइनल डेटा के अंदर ढूंढने के लिए मैं ढूंढूंगा। और कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए आपको? सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए। ओके, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया। तो इसने क्या कहा सर? अब एक बार के लिए दोबारा से मैं फॉर्मूला रीड कर देता हूं। ये क्या कह रहा है? इफ मैं अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे रहा हूं सर। लॉजिकल टेस्ट क्या दे रहा हूं कि मेरा मंथ क्या मेरी रिको मंथ से मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करता है तो आपने क्या बोला? चेक करना इफ मेरा जो रिमार्क्स है वो मैच है। तो अगर मैच है तो आपने क्या लिखा सर? मैच कर देना। अदरवाइज आपने क्या बोला? वी लुकअप लगा देना। तो इसने आपको सब में दे दिया। जैसे ही आप यहां पे मे 21 लिखेंगे, जैसे ही आप अच्छा क्या गलती हो गई इस फॉर्मूले में? इफ मंथ इज इक्वल टू रिको मंथ, अच्छा इसको हम दूसरे वे में भी कर देते हैं। चलिए सर, इफ बिकॉज जहां पे वो मंथ मिसमैच क्रिएट करेगा वो देखना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है? इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, तो हम ब्लैंक लिख देंगे। अगर मेरा रिमार्क्स के अंदर कॉलम नहीं आ रहा, रिमार्क्स के अंदर कॉलम कब आएगा सर? वैल्यू आएगी जब वो मंथ मैच करेगा। तो रिमार्क्स अगर ब्लैंक है तो मेरे को डाटा भी ब्लैंक चाहिए। अगर रिमार्क्स चेक करना है, अगर रिमार्क्स मेरा मैच है तो मुझे यहाँ पे मैच लिख देना है, अदरवाइज वी लुकअप लगाना है। अब वी लुकअप किस किस में लगाना है सर मुझे? जीएसटी नंबर एंड फाइनल इनवॉइस नंबर। फाइनल इनवॉइस नंबर लीजिएगा सर, नॉर्मल इनवॉइस नंबर नहीं लेना, बिकॉज मेरा पीवर्ड के अंदर फाइनल इनवॉइस नंबर गया हुआ है। तो आपने ये लगाया और ऐसे ही आपका आ गया। जैसे ही मैं इसको मे करूंगा, मे 21, आप यहां पे देखेंगे ब्लैंक हो गया। तो इस तरीके से आपके रिको में यहां पे भी रिमार्क्स आ जाएंगे कि ये इनवॉइस के क्या इश्यूज है, कि नॉट इन पीआर, नॉट इन टू बी। ये आपके पास रिमार्क्स आ गए सर। अब इनको आपको चेक करना है कि क्या रीजन है। अब जैसे ही अगर आप सर रिको में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्रैग करते जाएंगे और आपको यहाँ पे रीजंस दिख जाएंगे अगर कहीं पे मिसमैचेस होंगे तो। यहाँ से मैं एक बार के लिए मैच हटा देता हूं। तो आपकी यहाँ पे रिको रेडी है। लेकिन सर आप जब देखेंगे
तो ये 3 बिल तो ये 3 मंथ के कुछ बिल ऐसे हैं सर जो मेरा अप्रैल से पहले मंथ के बिल है। तो सर ये मेरा 2B का डेटा जो मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया, इससे पहले का अगर किसी ने लेट फाइलिंग करी होगी तो वो 2B में उस मंथ में दिखाएगा। तो ये वो इसलिए एरर आ रहा है, अदरवाइज ये यहाँ पे डेटा ये मार्च की रिको के साथ होना चाहिए था। तो या तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैं मार्च की रिको यहाँ पे लेके आऊं, या मैं एक बारी के लिए इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूं, बिकॉज मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पुराने डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पुराने डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखेंगे सर, इन बिल्स पे मुझे वर्किंग करनी है। अब ये सारे के सारे बिल्स वो हैं सर जो मेरे परचेज रजिस्टर में नहीं आ रहे। तो सर इसका रीजन तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास क्यों नहीं आ रहे। जब सामने वाली पार्टी ने रेज कर दिए, आपको इनवॉइस दे दिया, तो आपके यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, तो ये हमारे तरफ से गलती है। लेकिन आप देखेंगे ये बिल हैं जो नॉट इन 2B हैं, मतलब आपके पास है लेकिन सामने वाली पार्टीज ने नहीं डाले। तो सर ये वाले बिल तो अब आपको रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। ये रेक्टिफाई इस तरीके से करने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बिल में क्यों नहीं आ रहे। तो अब जब आपके पास आए नहीं तो आपको इन मंथ को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे। और ये बिल्स जो आपके 2B में नहीं आ रहे, तो सर इन बिल्स का हम इस मंथ में तो क्रेडिट नहीं ले सकते। इन बिल्स का हम इस पर्टिकुलर मंथ में क्रेडिट नहीं ले सकते। हमें क्या करना होगा, इन सारे बिल्स को मुझे नेक्स्ट मंथ पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जब नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है तो अभी तक जो हमारी प्रोसेस होता था, हम क्या करते थे, इन सारे डेटा को कॉपी करते थे और नेक्स्ट मंथ की रिको में भेज देते थे। तो सर इस बार हमें वो काम नहीं करना, हमें सिर्फ इसका मंथ चेंज करना है, इन बिल्स का मंथ चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा सर कि ये बिल आपके पास परचेज रजिस्टर में क्यों नहीं आ रहे। अगर जेन्युइन रीजन है और ये नेक्स्ट मंथ में ही ट्रांसफर करना है, देन दैट इज अ सेपरेट इशू, आप इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर देंगे। या इट मे बी पॉसिबल कि ये इनवॉइसेस आपके इनएलिजिबल क्रेडिट के हों, कि इनका क्रेडिट हमें लेना ही नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर कि सामने वाली पार्टी ने डाला लेकिन आपको इनका क्रेडिट नहीं लेना था, आपने छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे रिमार्क्स लिख सकते हैं सर, अपने अकॉर्डिंगली रिमार्क्स लिख सकते हैं कि ये इनएलिजिबल क्रेडिट है, ताकि फ्यूचर में आपका एक रेफरेंस बन जाएगा। लेकिन इन मंथ का क्रेडिट तो फिर जैसा भी आपका रिमार्क्स होगा आपको यहाँ पे वो रिमार्क्स लिख देना है। और इन मंथ को तो आप, इन बिल्स को तो आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते, बिकॉज सर ये परचेज रजिस्टर में नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना होगा सर, यहाँ पे सिर्फ मंथ चेंज करना है, और मंथ चेंज करते ही यहां से डेटा खत्म। तो मैं एक बारी के लिए इसको भी नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं कि हो सकता है कि ये आपके परचेज नेक्स्ट मंथ के परचेज रजिस्टर में आ जाए, इसलिए मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं। अदरवाइज आप यहाँ पे इनएलिजिबल क्रेडिट, तो वो जो भी रिमार्क्स है वो लिख देंगे। तो इज इट क्लियर टिल नाउ सर? कोई डाउट है तो हम टेकअप कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो सर, मैं कुछ को अनम्यूट करता हूँ जिनके Yeah, डाउट्स sure. हैं। मैं Sure, sir. पहले रमेश मुंद्रा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस रमेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर एक तो चैट डिसेबल्ड है। इनेबल्ड नहीं है सर, इनेबल्ड है सर चैट। आप देखिए एक डाल भी रखा है एक मेंबर ने कि एबीएस वाला, एबीएस फॉर्मूला, प्लीज रिपीट एबीएस फॉर्मूला। हाँ नहीं, मेरे उसमें डिसेबल्ड आ रहा है सर। ना सर, चैट हमारे यहाँ से तो इनेबल्ड है सर। नो इश्यू सर, हम आप वर्चुअल बताइए बात सर। कर देते हैं। दूसरा सर, ये जो मैच मिस मैच वाला जो फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला लगाया था ना एबीएस से ठीक पहले, वो एक बार वापस बताओ। बिल्कुल सर, हमने सर यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाए हैं, एक हमने रिमार्क्स में लगाया, एक हमने फाइनल रिमार्क्स में लगाया। तो पहले सर मैं रिको का फॉर्मूला ले जाता हूँ। रिको में क्या फॉर्मूला लगाया था? रिको में हमने सर रिमार्क्स का जो फॉर्मूला लगाया वो हमने लगाया है कि
अगर जो सर टोटल डिफरेंस है उसका मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो सर एबीएस, मैं एक हमारा डाउट है सर, एबीएस का फॉर्मूला भी वो इसी में टेकअप कर लेता हूं सर। एबीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर कि पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, उसका जो सिंबल है प्लस और माइनस का जो सिंबल है उसको इग्नोर मार के सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पिक करता है। तो जैसे आप देखेंगे सर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो मैं इसको एबीएस के लूंगा ना साथ में, तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा आपको, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होती है सर, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। हाँ, तो एबीएस में अब फॉर्मूला क्या लगाया है सर, मैंने फॉर्मूला लगाया, इफ का फॉर्मूला लगाया, और बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा अगर मेरी एबीएस वैल्यू ऑफ टोटल डिफरेंस, एबीएस, अब सर अब दो तरीके हो सकते हैं सर, एक मैं आपको दिखाता हूं सर। यहाँ पे एक तरीका तो क्या हो सकता है, मैं पहले यहाँ पे इसकी एबीएस वैल्यू निकालूं, ठीक है सर, और उस वैल्यू को यहाँ पे लिंक करूं, या जो वैल्यूज है मैं उसी का एबीएस निकाल दूं। तो एक ही बात है सर, दोनों काम कर सकते हैं। या तो आप अलग से एक कॉलम बना के इसको लिंक कर सकते हैं, या इसकी जगह पे जो फॉर्मूला है वो ले सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा, अगर ये वैल्यू मेरी लेस देन है टॉलरेंस लिमिट से, अब टॉलरेंस लिमिट आपकी सर कुछ भी हो सकती है, वो आप डिसाइड करेंगे, टॉलरेंस लिमिट से लेस देन है तो आपको यहां पे लिखना है मैच, अदरवाइज क्या लिखना है सर, मिसमैच। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया सर, पहला फॉर्मूला। ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला मैंने रिको में लगाया था, फाइनल रिमार्क्स, ये रिमार्क्स के अंदर रिमार्क्स, सॉरी सर, रिमार्क्स के अंदर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था सर कि अगर मंथ ऑफ दिस वैल्यू इनवॉइस इज इक्वल टू द मंथ ऑफ रिको, जिस मंथ की आप रिको कर रहे हैं वो दोनों मंथ इक्वल हैं, जैसे आप देखेंगे सर यहाँ पे, इफ मंथ ऑफ इज इक्वल टू रिको मंथ, तो आपको वी लुकअप लगाना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। तो मैंने वी लुकअप और अदरवाइज ब्लैंक लिख रखा है, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा दो बार लगा रखा है। अब वी लुकअप क्या करता है सर, थैंक यू सर। वी लुकअप क्या करता है सर, वी लुकअप आपका सिंपल सा फॉर्मूला लगाता है कि उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के सामने देखेगा कि वो मैच है या मिसमैच है। ठीक है सर। बाकी मैं ये वाली शीट एक बार के लिए सबको सर इसमें से डेटा हटा के एक दो सैंपल पे छोड़ के आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, तो आप लोग देख भी सकते हैं सर, और कभी भी सर किसी के कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सर, एनी टाइम आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये भी कहीं पे अवेलेबल होगी क्या? वो सर कीर्ति सर हमें बता पाएंगे। ओके सर। सर एक मिनट बता रहा हूँ। जगदीश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, जगदीश पाटीदार जी को। बिल्कुल सर। बी आर पटेल जी भी अनम्यूट। जगदीश जी बोलिए। हेलो। हाँ जगदीश जी। सर नेक्स्ट मंथ का डाटा भी इसी में पेस्ट करना है? सर नेक्स्ट मंथ के डेटा पे अभी मैं आऊंगा सर, अभी मैं उस टॉपिक को भी मैंने टेकअप नहीं किया, तो आफ्टर डाउट सेशंस मैं फिर नेक्स्ट मंथ का डेटा कैसे हमें काम करना है मैं उस पर भी अभी बात करूंगा सर। तो इसमें 2B का डाटा और परचेज डाटा दोनों डालना है मुझे सर उसके ऊपर अभी सर मैं आऊंगा, अभी एक बार के लिए डाउट्स लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट मंथ पे कैसे वर्किंग करनी है मैं वो भी आऊंगा सर। अभी सर अप्रैल का ही पूछ रहा हूँ मैं, अप्रैल में जो 2B का डाटा भी डालना है और परचेज का डाटा दोनों डालना है। बिल्कुल सर, जिसकी रिको करनी है सर, दो डेटा है तो आप दोनों डालेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी सर। बी आर पटेल साहब। बी आर पटेल साहब। एक क्वेश्चन और आया है सर। हाँ जी सर। One of the reason for data not coming in PR of current month may be that we have already put in PR of earlier month. How to deal with it? सर कोई भी इनवॉइस अगर आपने पहले मंथ में ले लिया
और जब से सर 2B आया है उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे आपके पास परचेज रजिस्टर में डेटा, आपके पास हार्ड कॉपी इनवॉइस आ गई या नहीं आई, मुझे उससे रेलेवेंस नहीं है। जब तक वो आपके 2B में नहीं आएगा आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो सर ये जो मेरा डेटा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे मंथ चेंज करके उसको May 21 किया, मतलब इसको मैं नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर गया। वो मैंने सर इसीलिए किया कि ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जब मैं नेक्स्ट मंथ की रिको बनाऊंगा तो ये इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ के साथ मैच कर रहे होंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ के जो 2B आएगा उसके साथ चेकिंग करेगा कि ये उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सर जब से आप ये रिको स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे तो आपको पुराना डेटा मैनुअली पुट करना ही पड़ेगा, बट आफ्टर दैट आपको मैनुअली कहीं पे भी लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट मंथ का डेटा डालना है। थैंक यू सर, कंटिन्यू कर सकते हैं सर अपन। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर अभी तक हमने देखा कि हमने एक मंथ की रिको तो कर ली। अब सबके साथ सर एक इशू ये आएगा कि सर नेक्स्ट मंथ पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे May 21 तो लिख दिया, जब हम इसके नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो हमें क्या करना है सर। तो सर उसके लिए उस टॉप पॉइंट पे आ जाते हैं सर। अब हम यहाँ पे, तो सर अब हमें परचेज रजिस्टर में से ये डेटा भी पिक कर लेना है। तो अब मैं जो रेलेवेंट डेटा है मैं वो वहां पे पेस्ट कर देता हूं, जीएसटी नंबर। और सर ये कॉलम के ध्यान रखने की हमें किस कॉलम में डालना है, इनवॉइस नंबर एंड डेट एंड देन टैक्सेबल वैल्यू, ये सब चीजें चाहिए। तो मैंने ये सारी वैल्यूज भी, सर मैं सेस इसलिए नहीं पिक करता बिकॉज सेस आता नहीं जनरली क्लाइंट में, आपके क्लाइंट में होता है तो आप सेस ले सकते हैं। और ये सारा डेटा मेरा कौन से मंथ का है सर, ये May 21 का है, तो मैं यहाँ पे May 21 लिख दूंगा। जिस भी मंथ का आप अब डेटा पुट कर रहे हैं आप उस मंथ का डेटा यहाँ पे डाल देंगे। और ये डेटा किधर से आया सर, ये परचेज रजिस्टर का डेटा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज पर परचेज रजिस्टर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है सर, May मंथ की 2B पिक करनी है, एंड देन जीएसटी नंबर इसी के नीचे पेस्ट कर देना है। और सर आप देखेंगे जैसे ही आप इसके नीचे डेटा पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरा टेबल जो है उसको एक्सपेंड कर देता है, टेबल अपने आप बढ़ जाता है सर। तो इससे बेनिफिट ये है कि इसका मतलब वो मेरा पिवट में भी ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो ये मेरी डेट आ गई एंड देन टैक्सेबल वैल्यू, सब चीजें मेरे को डाल देनी है। और सिमिलरली May मंथ ही रहेगा सर यहाँ पे, और यहाँ आएगा एज पर 2B, एज पर 2B, ठीक है सर। और उसके बाद मुझे क्या करना है सर, ये इनवॉइसेस सारे के सारे मुझे एज इट इज यहाँ पे कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं। एंड सर वही काम दोबारा से मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम एंड देन फिनिश। सर जस्ट फॉर अ सेकंड, एक कॉल है सर, जस्ट फॉर अ सेकंड। हेलो, हाँ जी। तो सर हमें ये काम कर दिया, तो ये कर दिया सर। अब आपको क्या करना है सर, अब आप देखेंगे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सर, कहीं कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ पेस्ट करना था, सिर्फ डेटा पेस्ट करना है सर और कुछ नहीं करना है। एंड देन अब रिको में आते हैं, तो रिको में आपके क्या करना है सर, डेटा पेस्ट कर दिया सर, रिको में आके सिर्फ राइट क्लिक करना है एंड रिफ्रेश करना है। दूसरी रिको में आना है, राइट क्लिक करना है एंड रिफ्रेश करना है, ठीक है सर। अब क्या करना है इसके बाद, सर अप्रैल मंथ की रिको हो गई,
अब क्या करना है, मई मंथ की रिको ले लो। और अब आप आगे बढ़ते हैं सर। ये देखिए रिमार्क्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं सर सब में। ये रिको यहाँ पे आए, यहाँ पे भी अब आपके डले हुए हैं सर सारे। परफेक्ट। यहाँ ब्लैंक आ गया। ये मिसमैच ले लीजिए सर, खाली मिसमैच पे वर्किंग करनी है और किसी पे हमें वर्किंग करनी नहीं है। अब आप देखिए सर, यहाँ पे भी आपकी रेडी है रिपोर्ट्स कि ये नॉट इन परचेज रजिस्टर, नॉट इन टू बी। तो आप देखेंगे सर, अब एक इशू आता है सर। ये इशू बहुत फेस होता है। जैसे आप देखेंगे सर, ये सेम दिख रहा है, सब कुछ सेम दिख रहा है, बट ये स्टिल गलतियां बता रहा है। तो सर गलती क्यों बता रहा है सर, उसका एक रीजन हो सकता है आइदर हमने इनवॉइस नंबर गलत डाला हुआ, मतलब पार्टी ने इनवॉइस नंबर कुछ दिया डाला 2B के अंदर और हमने अपने रिकॉर्ड के अंदर कुछ इनवॉइस नंबर डाल दिया, डिफरेंस होगा तो इशू आएगा। या आप देखेंगे सर यहाँ पे जीएसटी नंबर में भी फर्क है। यहाँ पे हमने लास्ट में ओ लिखा हुआ है और पार्टी यहाँ पे 0 है, तो दोनों मिसमैच है। तो वी शुड हैव द सेम इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर एंड सेम इनवॉइस नंबर। तो आपको क्या करना है सर, ये वाला जीएसटी नंबर चेंज करना है। तो यहाँ पे बेस डेटा में आके अब आपको अपना जीएसटी नंबर तो सुधारना पड़ेगा सर, और इसको 0 कर देना है और फिर दोबारा से वही पिवट रिफ्रेश मार देना है सर आपने, और कुछ नहीं करना, सिर्फ रिफ्रेश मारना है। तो जैसे ही रिफ्रेश मारेंगे आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब ये देखेंगे सर आपके सारे रिको रेडी है। तो सर रिको बड़ी इजीली अब आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहां तक अब किसी के भी कोई डाउट है तो हम सारे टेकअप कर सकते हैं। और कभी भी सर ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके इनवॉइस नंबर भी मिसमैच हो। तो सर इनवॉइस नंबर मिसमैच हो तो इसीलिए मैंने आपका एक फाइनल इनवॉइस नंबर का कॉलम बनवाया है। फाइनल इनवॉइस नंबर का कॉलम सर मैंने इसलिए बनवाया कि अगर कोई इनवॉइस नंबर चेंज करना पड़ता है तो आप इस कॉलम में चेंज करें, सो दैट आपका बेस डेटा चेंज ना हो, रिको पर्पस के लिए डेटा चेंज हो जाए। ठीक है सर। तो मेरी सजेशन तो यही होती है कि सर इनवॉइस नंबर हमेशा वही डालें जो बिल पे लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस ना करें। बट कई बार एंट्री के टाइम पे गलतियां हो जाती हैं तो सर उसको मैनुअली थोड़ा बहुत टेकअप करना पड़ेगा। बट बेनिफिट ये होगा जब भी आप इनवॉइस नंबर चेक कर रहे होंगे तो वो आपको साइमल्टेनियसली दिख रहे होंगे आसपास में। तो उससे हमें अपने आप, जैसे ही हम ऊपर से लेकर नीचे तक अब जैसे ही चेक, हेलो 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 तिवारी जी, सभी को एक बार म्यूट कर दीजिए। रीजन बीइंग शायद किसी ने अनम्यूट करके 2 सिस्टम एक ही ऑफिस में लॉगिन है शायद। हेलो हाँ जी सर। तो हमें क्या करना है सर, इस तरीके से हमें काम करना है। तो जब भी अगर हमारे इनवॉइस नंबर मिसमैच होंगे तो सर हमें वो जब इस रिको में जब भी आप देखेंगे वो आपको ऊपर नीचे दिख जाएंगे। तो आप जैसे ही ऊपर से लेकर नीचे तक एक बारी के लिए ड्रैग करेंगे, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ही समझ आ जाएगा कि यार इनवॉइस नंबर में कोई गलती है, बिकॉज अमाउंट तो मैच कर रही है एकदम। तो वो एक जगह पे बोलेगा 2B में नहीं है, एक जगह पे बोलेगा परचेज रजिस्टर में नहीं है। तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उनके इनवॉइस नंबर आप ठीक कर लीजिए, और जैसे ही इनवॉइस नंबर ठीक करके रिफ्रेश करना है, आपका डेटा ऑटोमेटिकली रिको कर देगा उसको और मैच में ला देगा। ठीक है सर। तो अब फिर आपके सामने वही 2 इश्यूज आ गए कि सर ये नॉट इन पीआर है और नॉट इन 2B है। तो जो नॉट इन पीआर है सर उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पीआर में क्यों नहीं है। तो सेम मल्टीपल रीजन हो सकते हैं
कि या तो ये इनवॉइस आपके पास अभी तक आया नहीं है या ये इनएलिजिबल क्रेडिट है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो आपको मैनुअली टेकअप करना पड़ेगा। बट ये डेटा टैली से निकाला हुआ है, तो सर टैली में कई बार ऐसा होता है कुछ इनवॉइसेस एक्सपोर्ट नहीं करता इन जीएसटीआर 2B। जो 3B हम बनाते हैं तो उसमें वो डेटा अपने आप नहीं लेता, तो एक रीजन वो भी हो सकता है टैली में कि मतलब आपने एंट्री कर दी बट वो डेटा आपके जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो हमारे ठीक करने होंगे, हमें टैली को में ठीक करना होगा कि टैली से वो जीएसटीआर 3B में पहुंच जाए। तो अभी तक किसी का भी कोई भी डाउट हो तो सर अब हम आराम से टेकअप कर सकते हैं। किसी भी मेंबर का अगर डाउट है तो वो अपने आप को हैंड रेस करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर आगे प्रोसीड करते हैं प्लीज। चलें सर आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब ये जीएसटीआर 2B की रिको हो गई, सेम बेस पे आप 2A की रिको भी कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, मेथड सेम फॉलो करना है सर। बस 2B की जगह पे एज पर 2A हो जाएगा, मेथड सेम होगा। यहाँ पे ये मंथ वाला कॉलम नहीं लेना होगा बिकॉज 2A कंप्लीट ईयर का बनता है, तो आप मंथ वाला कॉलम नहीं लेंगे सर। तो 2A का रिको होगा तब भी यही आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ई इनवॉइसिंग की रिको करनी है, जनरली जिनके भी बड़े क्लाइंट्स हैं वहां पे ई इनवॉइसिंग फॉलो होना स्टार्ट हो गया है, तो ई इनवॉइसिंग की रिको करनी है तो आप ये सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत आपको ये चेंजेस करने हैं, बाकी सेम रिको, वहां पे भी आप इसी रिको को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो रिको इजीली आप कोई भी रिको हो आप इस तरीके से ले सकते हैं सर, ठीक है। अब इसके बाद सर मेरा रिको पार्ट मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे रिको पार्ट है जो हमारा जीएसटी से लिंक्ड नहीं है बट अदर टॉपिक से लिंक्ड है। तो इफ यू अलाउ तो क्या मैं वो टेकअप कर सकता हूं सर? हेलो कीर्ति सर। यस सर। हाँ, तो कुछ हमारे सर ऐसे रिकंसिलिएशन के पॉइंट आते हैं जो हमें जीएसटी के नहीं है, अदर देन जीएसटी है, बट उसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या मैं वो टेकअप कर सकता हूं सर अभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। तो सर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं ऑडिट करने के लिए, और एट दैट टाइम हमारे पास दो ट्रायल्स होते हैं सर। एक ट्रायल होता है सर हमारे पास क्लोजिंग, जिससे हमारी बैलेंस शीट बनती है। एक ट्रायल होता है सर हमारे पास ओपनिंग, जो क्लाइंट कैरी फॉरवर्ड कर रहा है टू द नेक्स्ट पीरियड। तो हमारा सबसे पहला काम होता है सर क्लोजिंग ट्रायल से ओपनिंग ट्रायल को चेकिंग करते हैं। और जब सर हम क्लोजिंग ट्रायल से ओपनिंग ट्रायल को चेकिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ मिसमैचेस आते हैं, ताकि वो हम आइडेंटिफाई कर लें। तो सर मुझे कोई बताएगा हम क्या मेथड फॉलो करते हैं उस टाइम पे, कैसे रिकंसाइल करते हैं? एनी वन सर, कोई भी, हम क्या मेथड फॉलो करते हैं सर? नो वन? हम जो मेथड फॉलो करते हैं सर, जनरली हम कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं सर? एक तो सबसे पहला मेथड होता है मैनुअली टिकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरीका वो हो सकता है। एक तरीका हो सकता है सर हम क्या करते हैं कि दो हमारे पास ट्रायल हैं, उससे वीलुकअप मारते हैं एक डेटा पे, और दूसरे डेटा पे वीलुकअप मारते हैं, एंड देन उसके कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दो तरीके होते हैं जनरली जो यूज करते हैं। अब इसका एक अल्टरनेट है सर हमारे पास कंसोलिडेट फंक्शन। सर कंसोलिडेट आपका समरी विद इन अ सेकंड, कितना भी बल्क डेटा हो विद इन अ सेकंड आपको क्रिएट करके दे देगा। अब वो क्या करता है सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं सर।
सर मैंने कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पे, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बना दिए मैंने यहाँ पे, 25 लेजर्स बना दिए। अब नाम कुछ भी हो सकता है सर, मैं उस नाम पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक सिंपल सा लेजर बना दिए और यहाँ पे मैंने एक रैंडम अमाउंट ले ली। यहाँ पे मैंने एक रैंडम अमाउंट ले ली। सर अब मैं कहता हूं लेट सपोज ये मेरा ओपनिंग ट्रायल, ये क्लोजिंग ट्रायल है, ठीक है सर। अब सेम ट्रायल आपका होना चाहिए वैसे तो ओपनिंग ट्रायल भी, सिर्फ इसके P&L आइटम नहीं आएंगे, बाकी ओपनिंग ट्रायल तो सेम होना चाहिए सर, ठीक है सर। ये मेरा हो गया ओपनिंग ट्रायल। अब सर आपको क्या करना है कि P&L आइटम छोड़ के बैलेंस पे वर्किंग करनी है, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, बिकॉज P&L का जितना भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारा सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आना चाहिए, बाकी कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और वो डिफरेंस भी दैट शुड बी इक्वल टू ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है सर। तो अब हमें क्या करना है, ये मेरा बैलेंस होगा एज ऑन 31 मार्च 2020 लेट्स सपोज, और ये बैलेंस होगा एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहां पे मैं पर्टिकुलर्स लिख देता हूं। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर से देता हूँ सर। अब हमें क्या करना है सर, अभी अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 71 कर दिया, कुछ भी चेंजेस कर देते हैं सर हम यहाँ पे। मैंने कुछ चेंजेस कर दिए आपके यहाँ पे ना सर, एक इस ट्रायल में चेंजेस कर दिए, और सिमिलर चेंजेस मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट से कर देता हूँ। मैं सर रैंडम चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये अब मैंने कुछ चेंजेस कर दिए सर। हमें क्या करना है सर, ब्लैंक कहीं पे भी ब्लैंक डेटा पे जाके क्लिक, ब्लैंक सेल पे रखना है, एंड देन आपको डेटा के अंदर जाना है। डेटा के अंदर आप डेटा टूल्स में देखेंगे आपको एक कंसोलिडेट फंक्शन दिख रहा होगा। तो कईयों किसी के लैपटॉप में हो सकता है वहां पे वो कंसोलिडेट लिखा हुआ दिख जाए, या आप यहाँ पे देखेंगे तो किसी के भी ऊपर जब होल्ड करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट दिखा देगा। तो इस कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक कंसोलिडेट की स्क्रीन ओपन होगी। आपको क्या करना है सर, पहले सबसे पहले एक डेटा ब्राउज करना है और ऐड कर देना है, देन दूसरा टेबल ब्राउज करना है एंड ऐड कर देना है, देन यहाँ पे यूज लेबल्स इन के अंदर टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, जिसके बेसिस पे रिकंसिलिएशन होनी है। बिकॉज मेरा जो रिकंसिलिएशन का पार्ट है दैट इज लेफ्ट कॉलम, बिकॉज उसके अंदर पर्टिकुलर्स लिखे होंगे, लेजर के नाम लिखे होंगे, एंड टॉप रो जो डिफरेंट कॉलम्स होंगे, एंड ओके क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे सर, आप देखिए सारी फिगर्स को उसने साइमल्टेनियसली लिख दिया विद हेल्प ऑफ रिको, विद द हेल्प ऑफ रिको रिकंसिलिएशन उसने लिख दिया। और अब आपको यहाँ पे डिफरेंस निकाल देना है दोनों का। अब डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे सर जिसमें भी डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ ये 7 आइटम ऐसे दिखे जिसके अंदर इसमें डिफरेंस आया। अब आप देखेंगे सर यहाँ पे वैल्यू दोनों में है, मतलब अमाउंट में चेंजेस आ गया। यहां लेजर का नाम पहले दूसरा था, नाम अलग हो गया, वैल्यू सेम है लेकिन नाम डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें साइमल्टेनियसली दिख जाएगी। तो अगर आप मैनुअली काम कर रहे थे सर, अब मैनुअली ना करके हमें क्या करना है, सिर्फ एक कंसोलिडेट बनाना है और सारी रिकंसिलिएशन आपके सामने, जितने भी 5-10 लेजर्स के अंदर डिफरेंस होगा वो सामने आपके आ जाएंगे। तो
इंस्टेड ऑफ सारा डेटा देखने के हमें वो सिर्फ 5 लेजर्स देखने जिसके अंदर डिफरेंस आया वो देख सकते हैं। ठीक है सर, तो इन 5 लेजर्स पे हमें वर्किंग करनी है। लेकिन सर इस कंसोलिडेट फंक्शन को यूज करते टाइम कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान क्या रखना है सर, जो 2 डिफरेंट टेबल होंगे तो उसमें जो लेफ्ट कॉलम है जिसके पर्टिकुलर वाला लेजर वाला कॉलम है उसका दोनों टेबल का नेम सेम होना चाहिए। वो नेम सेम नहीं होगा तो सर आपका ये वर्क नहीं करेगा। दूसरा, जो अमाउंट का कॉलम है, जो अमाउंट का कॉलम है दोनों का नेम डिफरेंट होना चाहिए, हेडर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा, अगर मैं सेम नेम लिख देता हूं, अगर मैं सेम नेम लिख देता हूं तो क्या होगा सर, अगर मैं सेम नेम लिख के काम करता हूं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल सेम नेम लिख के और सेम काम करता हूं, यहां पे वही डेटा हो रखा है, मैंने ओके करा, तो आप देखेंगे सर उसने दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो जो नई वैल्यूज आई इसने वो भी इनकॉर्पोरेट कर दी, प्लस दोनों वैल्यूज को उसने ऐड कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें किस पर्पस के लिए उसको यूज करना है। तो ये कंसोलिडेट फंक्शन हमारा कई चीजों के लिए यूज हो सकता है। जैसे इसमें आपको सम करना है, एवरेज निकालना है, जो भी काम करना है, ये बेसिक काम है जो आप कर सकते हैं। सॉरी, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं सर। तो इस तरीके से आप रिकंसिलिएशन भी ओपनिंग ट्रायल क्लोजिंग ट्रायल की इजीली कर सकते हैं। अब आपके जितने भी आपके डेबिट क्रेडिट कॉलम है, मल्टीपल कॉलम है, आप उनको टेकअप कर सकते हैं, तो वो उतने ही डिफरेंट कॉलम बना देगा। तो इसमें किसी का कोई डाउट है तो सर हम टेकअप कर सकते हैं, किसी के भी कोई डाउट है तो। कोई भी डाउट हो किसी का? सर आप संदीप सर ने एक डाउट पूछा है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम होते हैं, तो वेदर इट विल वर्क ऑन दैट एज वेल। सर आपके 5 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, 15 कॉलम हो, वो उतने ही डिफरेंट कॉलम क्रिएट कर देगा। तो वो उतने ही डिफरेंट कॉलम क्रिएट कर देगा, आप उतने ही कॉलम्स के बेसिस पे वर्किंग कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको सर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल, मैं डेबिट बैलेंस लिख देता हूँ सर, एक क्रेडिट बैलेंस लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई 9। सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट लिख देता हूँ सर। आप इस तरीके से कर सकते हैं सर। यहाँ पे डेटा में जाएंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, और सॉरी स्टॉप शेयर हो गया सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है एक बार प्लीज? यस सर। तो सर दोबारा से फिर कंसोलिडेट पे जाएंगे। कंसोलिडेट पे जाने के बाद अब यहाँ पे मुझे रेंज चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड किए हैं। ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए एंड देन जस्ट ओके। तो सर थाउजेंड्स ऑफ लाइन आइटम हो, आपको कोई काम रिक्वायरमेंट नहीं है, ये विद इन अ सेकेंड्स आपको डेटा दे देगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर बहुत बल्कि डेटा हो तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट बहुत फास्ट बेसिस पे काम कर देगा। जितने में आप VLOOKUP नहीं लगा पाएंगे उससे पहले ही आपको रिपोर्ट दे देगा। तो सर आप देखेंगे यहाँ पे 31 मार्च 20 के 2 कॉलम क्रिएट कर दिए और 1 अप्रैल 20 के 2 कॉलम क्रिएट कर दिए। अब आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं सर इजीली। तो इस तरीके से आप ये काम मल्टीपल कॉलम्स पे भी कर सकते हैं। 5 कॉलम, 10 कॉलम, 15 कॉलम, जितने भी कॉलम आप
यहाँ पे हो सकते हैं काम। सर अरुण कुमार गुप्ता जी का शायद आई थिंक कोई डाउट है, तो हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं। तो सर किसी का कोई डाउट है तो हम टेकअप कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ और पॉइंट भी है मैं वो आगे टेकअप कर लेता हूँ। सो कैन आई प्रोसीड फर्दर सर? कोई किसी का डाउट है? अरविंद अग्रवाल सर का एक छोटा सा क्वेश्चन आया है कि कैसे हम ये सारी चीजों को रिमाइंड कर सकते हैं कि सर मैं इसके बारे में सिंपल सी बात कहूंगा सर, हम चार्टर्स हैं, हम इतनी मल्टीपल चीजें याद रख सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन नॉट डू दी एक्सेल। हमारे माइंड में सर इनकम टैक्स भी घुसा हुआ है, जीएसटी भी घुसा हुआ है, अकाउंटिंग भी घुसी हुई है, सब कुछ घुसा हुआ है सर हम लोगों के माइंड में। तो सर एक छोटी सी चीज है एक्सेल, तो सर नो डाउट इट टेक्स अ प्रैक्टिस, बट जैसे जैसे आप इसको अपने रूटीन लाइफ में लेके आएंगे सर, तो आप देखेंगे कि सर आपको याद रखने की कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये आपके रूटीन लाइफ में आ जाएगा और आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। इनिशियली सर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जब इनिशियल टाइम पे आप वर्क कर रहे होंगे, बट धीरे धीरे ये काफी रूटीन लाइफ में आने के बाद आप इजीली कर पाएंगे, आपको कहीं पे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सर अब किसी का कोई डाउट है तो हम टेकअप कर सकते हैं। हाँ जी अंकुश सर, किसी का कोई डाउट हो तो? आई थिंक सर कवर कर लिया है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर, इसके बाद हम लोगों के पास एक रूटीन लाइफ में सबसे बड़ा काम आता है सर बैलेंस शीट। सर जब भी हम फाइनेंशियल्स पे वर्क करते हैं, नो डाउट मैं फाइनेंशियल्स नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज विजय सर का कल का सेशन है, विजय सर ऑटोमाइजेशन बिल्कुल बताएंगे ही बताएंगे, बट मैं ऑटोमाइजेशन से ऊपर भी एक चीज बताता हूँ जो सर हम लोग ऑटोमाइजेशन तो सर नो डाउट, जैसे अरविंद सर का एक क्वेश्चन था कि हमें तो वो सारे के सारे फॉर्मुलेज एंड ऑल वो आने चाहिए, बट उससे बेसिक एक चीज है सर जो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे किसी सीनियर के पास फाइनेंशियल्स आते हैं तो सीनियर्स का काम होता है, बिकॉज जो आर्टिकल्स हैं वो तो ट्रायल के बेसिस पे फाइनेंशियल्स आपको बना के हैंड ओवर कर देते हैं, सीनियर्स उसके अंदर एडजस्टमेंट की काम करते हैं कि कोई एक्सपेंसेस सही करना है, कुछ करना है, कोई इधर शिफ्ट करना है, सेकंड जगह शिफ्ट करना है, बट एवर द थिंग इज जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है वो सीनियर्स का काम होता है, जो मैनेजमेंट है वो बड़े लेवल पे काम होते हैं सर। तो उन टाइम पे सर होता क्या है हमारे साथ कि जब वो हम चेंजेस कर रहे होते हैं तो होता है कि धीरे धीरे हमारी बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती है। एक चेंजेस, दो चेंजेस, चार चेंजेस, 5 चेंजेस के बाद वो हमारी बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती है। तो उस मिसमैच से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सर एक तरीका तो हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि सर एक चेंज करते हैं और जाके बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि क्या वो बैलेंस शीट चेंज में कोई डिफरेंस तो नहीं आया। फिर दूसरा चेंज करते हैं और फिर चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में डिफरेंस तो नहीं आया। तो सर अगर 5 शीट, 6 शीट, 10 शीट तक हैं, जब तो हम ये मूव कर भी सकते हैं, लेकिन जहां पे सर जिस कंपनीज के अंदर 50 शीट, 60 शीट्स मतलब नंबर ऑफ शीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, सो एट दैट टाइम वो
मूव करना एक शीट से दूसरे शीट पे पॉसिबल नहीं होता। तो उसी चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे पास एक टूल होता है वॉच विंडो, हम उसको टेकअप कर सकते हैं। और वॉच विंडो सर उसके लिए हमें कहीं कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि वॉच विंडो जैसी कोई चीज है। तो इफ वी नो दैट हम काम कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स ले रहा हूं, असेट्स, असेट टोटल जो हमारी बैलेंस शीट में हमेशा हमारे पास होगा, लायबिलिटी टोटल ये बैलेंस शीट में होगा ही होगा सर। मैं बैलेंस शीट नहीं दिखा रहा सर, इसलिए मैं जस्ट कुछ फिगर्स पिक कर रहा हूं, कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं, ठीक है सर। एक डिफरेंस का कॉलम होता है कि बैलेंस शीट मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये माइनस, देन इसके बाद सर हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे काम नहीं करना, हमें सीनियर्स को हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए और नेट प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है सर। तो ये बैलेंस शीट और P&L के अंदर ये कुछ ऐसे बेसिक आइटम है जो हर किसी को रिक्वायरमेंट है ही है सर, फॉर द एनालिसिस पर्पस एंड ऑल। इसके अलावा और भी आइटम्स हो सकते हैं, हम वो भी ले सकते हैं, हमें कहीं कोई इशू नहीं है, जितने भी आइटम्स हैं हम वो ले सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर सर यहाँ पे अब मैं एक दूसरी शीट लेता हूं सर जहां से ये डेटा आता है, तो बेसिकली हमारे पास असेट का टोटल कहां से होता है, ऊपर जितने भी मल्टीपल आइटम है, करंट असेट नॉन करंट असेट उधर से आएगा, लाइबिलिटीज का इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज इस तरीके से आएगा टोटल। और उस करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हमारे शेड्यूल्स हैं उनका टोटल बैकएंड पे नोट्स से आता है। तो सर अब हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट, मैं लेट यहाँ पे वही कॉलम दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे एक बारी के लिए, जहां से मैं ये कह रहा हूं कि ये फिगर्स पिक होके आ रही होंगी। अब मल्टीपल जगह से चीजें हो सकती हैं सर, ऐसा नहीं है कि एक जगह से ही होगा ये। अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख देता हूं सर। अब ये आ गया सर, हमें क्या करना है सर, हमें वॉच विंडो बनानी है। तो ये हमारा एक बेसिक चीजें हैं जो जो हमें देखनी होती हैं। तो वॉच विंडो बनानी है, वॉच विंडो के लिए हमें क्या करना होगा सर, हमें फॉर्मूलाज में जाना है और आप देखेंगे यहाँ पे वॉच विंडो आपको दिखेगी, इस वॉच विंडो पे क्लिक करना है तो ऐसा एक डेटा आपके सामने यहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है, ऐड वॉच पे क्लिक करना है और जिस जिस सेल्स को आपको लेना है वो सारे के सारे सेल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने एक जैसे डिफरेंस ले लिया, आप ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इसको ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप इसको ऐड कर दीजिए। जितने भी सेल आप लेना चाहते हैं वो आप सारे के सारे ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी आपने सेल्स लिए वो सारे के सारे यहाँ पे सेल आ गए, ठीक है सर। अब अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन सर अब आप लोग कहेंगे सर ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन सा सेल किस चीज का है। तो मुझे ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, मैं इसको छोड़ सकता हूं, ठीक है सर। मुझे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फॉर्मूला हाइड कर सकता हूं। अब आप कहेंगे सर ये नेम कैसे पता लगेगा, मतलब ये डिफरेंस तो दिख रहा है, मैंने वैल्यूज तो ऐड कर दी सारी के सारी, लेकिन ये किस चीज की है मेरे को कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सर, डिफरेंस में यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे यहाँ पे देखेंगे जो सेल का रेफरेंस बता रहा है कि ये AI7 है, इसको यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया बैलेंस शीट या BS डिफरेंस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया तो आप देखेंगे सर यहाँ पे इसने नेम बता दिया, BS डिफरेंस का अमाउंट 0 है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिया
तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया जीपी, और नेट प्रॉफिट लिया मैंने, यहाँ पे नाम दे दिया एनपी। तो आप देखेंगे सर ये नेम आ गया। अब दूसरी शीट में जाके, नोट्स में जाके जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे चेंजेस कराया 1,20,000, तो मेरे बैलेंस शीट का डिफरेंस क्या होगा सर? मेरे बैलेंस शीट का डिफरेंस 20,000 से बढ़ गया होगा। आपको दोबारा से वहां जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखिए सर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस शीट का डिफरेंस बता रहा है 20,000। तो आपको बार बार बैलेंस शीट पे मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो वहां का जो वैल्यू है वो आपको यहां दिखा देगा। अब मैं एक बार के लिए बैलेंस शीट पे भी जाके दिखा देता हूं सर। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस 20,000 आ भी रहा है। तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर नोट्स में जाके उस एक चीज की वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा देगा वॉच विंडो के अंदर कि इस चेंजेस की वजह से उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जितनी भी वॉच विंडोज ऐड करेंगे वो यहाँ पे सारी वॉच विंडोज आ जाएंगी। जैसे मैंने इसको 1,50,000 किया तो माइनस का 30,000 हो गया। मैंने इसको 40,000 किया तो आपका जीपी चेंज हो गया। इसको 30,000 किया आपका एनपी चेंज हो गया। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे उस तरीके से आपका ऑटोमेटिकली डेटा वेरी करता रहेगा। तो आप अपने रूटीन वर्क में इस वॉच विंडो को भी यूज कर सकते हैं, जो आपका ठीक है, इस वॉच विंडो को भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका डेली रूटीन लाइफ काफी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब आप बैलेंस शीट्स पे वर्क कर रहे होते हैं तो जो सीनियर्स हैं बार बार मूव ऑन करने के बजाय वो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको रूटीन लाइफ में हेल्प करेगा। और ये ऐसा नहीं है, आप जिस भी शीट पे जाएंगे सर, आप किसी भी शीट पे जाएंगे वॉच विंडो वैसे ही ओपन रहेगी। और जितनी भी लिंकिंग हो, लिंकिंग आप 50 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जाएगी वहां पे। तो क्लियर है सर यहां तक? और अगर वॉच विंडो हटानी है तो आप यहाँ पे जाके बस क्रॉस पे क्लिक करना है, वॉच विंडो का स्क्रीन यहाँ से हट जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉच विंडो। हमने कंसोलिडेट भी सीख लिया कि कंसोलिडेट से हम ट्रायल्स को कैसे रिको कर सकते हैं, एंड और ओपनिंग ट्रायल, क्लोजिंग ट्रायल, और यहाँ पे मल्टीपल रिको भी कर सकते हैं। सॉरी सर, ये कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि वॉच विंडो आपको ये बता दे कि किस नंबर में चेंजेस हुए हैं, लेकिन फॉर दैट पर्पस आपके पास एक ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन जरूर होता है। तो आप ट्रैक चेंजेस को यूज कर सकते हैं जब भी आपकी कोई शीट प्रोटेक्टेड होगी। तो जब भी आप ये देखेंगे यहाँ पे प्रोटेक्टेड शीट आप कर देंगे तो उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ट्रैक चेंजेस भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बट फॉर दैट पर्पस आपको अपनी एक्सेल शीट को ट्रैक चेंजेस मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो भी कर सकते हैं, बट दैट शुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर द ट्रैक चेंजेस मोड। तो उसके लिए आपको ट्रैक चेंजेस मोड में पहले अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वो हाईलाइट कर देगा कि किस चीज के अंदर चेंजेस हुआ है। वो पूरी की पूरी एक लिस्ट दे देगा आपको ट्रैक चेंजेस मोड में। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। सेम चीज आप एक्सेल में भी, वर्ड में भी यूज करते हैं सर आप ट्रैक चेंजेस मोड, तो कि किस किस चीजों के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो ये भी हम काम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से सर मैंने रिकंसिलिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी था मैंने आपको अपना एक्सप्लेन कर दिया है। आप कोई डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा आप लोग चाहते हैं कि ये चीज कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम टेकअप करना चाहते हैं, तो हम वो भी ले सकते हैं सर।
ये क्या है, ये बोरिंग फ्रॉम बैंक। तो ठीक है। तो अंकुश सर, अब कोई इसी के कोई डाउट हैं, कुछ भी टॉपिक आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि ये टेकअप कर लीजिए, तो वो हम देख सकते हैं सर। बिल्कुल सर। कोई भी मेंबर्स को यदि कुछ लगता है कि कोई और टॉपिक जो कवर करना है सर को, तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सर चैट बॉक्स में आया है, अरविंद सर का है कि पाइवट टेबल के लिए थोड़ा सा और आप उस पर एक्सप्लेन कर सकें। नो इशू, नो इशू सर। सर पिवट टेबल हमारा एक काफी एडवांस्ड टूल है बेसिकली। इससे हम काफी सारी रिको कर सकते हैं। रिको किस तरीके, रिको मतलब समराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो पिवट टेबल बहुत यूज होता है समराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं सर? इसके अंदर हम एजिंग बना सकते हैं पिवट टेबल में अपने अकॉर्डिंगली। इसके अंदर सर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ टेकअप कर लेता हूं सर। जैसे मैंने इसका एक पिवट बनाया सर। सर डेटर्स की एजिंग और क्रेडिटर्स की एजिंग क्वार्टरली देनी पड़ती है बैंक में। बिल्कुल तो, सर, मैं उस चीज को टेकअप कर लेता हूँ। हाँ उसको प्लीज। हाँ, उस चीज को मैं अभी टेकअप कर देता हूँ सर। तो मैं वही चीज बताना भी चाह रहा था सर। तो मैं जस्ट फॉर इजी पर्पस मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की एजिंग है। ओपन इनवॉइसेस है, जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं सो दैट कि मैं अदर मेरे को कोई डेटा प्रिपेयर ना करना पड़े। तो मैंने जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की एजिंग है। और अंकुश सर बैकएंड से किसी का अनम्यूट है जो डिस्टरबेंस, बैकएंड से डिस्टरबेंस हो रही है, तो रिक्वेस्ट है सर प्लीज उनको म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल सर। सर तो मैंने यहाँ पे मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि मेरा यही एक डेटर के ओपन आइटम्स हैं और एज निकालनी है। तो लेट सपोज मुझे आज की डेट में एज निकाल, या मैं ये मान लेता हूं ये सारा मेरा 30 जून को एज निकालनी है। ठीक है सर। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द डेट। आप इस तरीके से डिफरेंस निकाल देते हैं सर। राइट सर। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे एजिंग मैनुअली सिलेक्ट करते हैं कि कितने कितने डेज के हैं और उसके सामने मैनुअली एजिंग लिखते हैं। तो सर ऐसा अब हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं सर, पिवट बनाना है। मैंने ये पिवट ऑलरेडी बना रखा था, मैं उसी को ले लेता हूं। मैंने सप्लायर जीएसटी नंबर को एज्यूम कर लेता हूं। ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट एजिंग्स हैं पार्टीज की। ठीक है सर। अब आप कहते हैं मुझे क्वार्टरली एजिंग चाहिए, मतलब मंथ वाइज क्वार्टरली वाइज एजिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे डेट ले लीजिए सर, या मैं डेट यहाँ पे, अब वो आप डिसाइड कर सकते हैं डेट कॉलम में लेनी है, डेट लेनी है। तो इसको मैं अभी के लिए अनलॉक करता हूँ। आपके पास जो डेट आएंगी वो सर डेट इस तरीके से आती है। आप देखेंगे आपके पास इस तरीके से डेट्स आती है जब भी आप पिवट बनाते हैं। तो इस पे आप राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं और ऑन द एक सेल पे राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं। और ग्रुप आप सर यहाँ पे देखेंगे किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, मंथ ले सकते हैं, क्वार्टर ले सकते हैं, ईयर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा सर ईयर्स तो हमेशा लीजिए। जब वो मल्टीपल ईयर का डेटा आएगा ना, वो तब इशू क्रिएट करता है। तो ईयर तो हमेशा लीजिए। बाकी मंथ पे चाहिए, क्वार्टर पे चाहिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी के लिए मैंने क्वार्टर ले लिया, तो आप देखेंगे सर इसने 2021 का क्वार्टर 1, 2020 का क्वार्टर 2 का डेटा ले लिया। ठीक है सर। अब आपको टोटल चाहिए तो आप यहाँ पे ये एजिंग आपकी रेडी है सर। क्वार्टर 1 की कितनी, क्वार्टर 2 की कितनी है, पहला चीज। ठीक है सर। तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्लबिंग कर देगा। ये तो हो गई हमारी सर डेट की एजिंग।
डेट की ग्रुपिंग, डेट बेसिस पे ग्रुपिंग करना है। आप ये चाहते हैं कि अब अगर मैं इस इनवॉइस डेट को ही अगर मैं रोज में लेके चले जाऊंगा तो रो वाइज डेटा दे देगा। सेम चीज अगर मैं लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूं, अब सेम चीज मुझे चाहिए ब्रैकेट कितने कितने एज ब्रैकेट में है, अगर वो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक डेज डिफरेंस निकालते हैं सर एज का, वो एज यहाँ पे ले आइए। तो आप देखेंगे सर इसने तो बहुत डे वाइज बता दिया कि कितने कितने डेज हैं। ठीक है सर, तो आप क्या कर सकते हैं सर, राइट क्लिक करना है, सेम ग्रुप करना है, सॉरी सारा सिलेक्ट नहीं करना, एक ही सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ग्रुप करना है। और जैसे ही ग्रुप करेंगे तो अब ये देखिए सर स्टार्टिंग एंडिंग एट, इसने रेंज दे दी। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 159 है तो मैं 180 तक ले लेता हूं। और कितने के ब्रैकेट पे चाहिए, लेट्स सपोज आपने कहा 30 के ब्रैकेट पे चाहिए, 30 का एज ब्रैकेट चाहिए। तो आप ये देखेंगे सर इसने सारी एजिंग को अपने आप ब्रेक कर दिया। जो अभी तक हम मैनुअली करते सर, अब वो हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ये आप देखेंगे 30 to 59 आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 ले लीजिए तो वो 1 to 30, 31 to 60 इस तरीके से आपको शो कर देगा। तो अब देखिए सर आपको विद इन अ सेकेंड जो काम हमारा इतना बल्कि टास्क होता था, इसको इसने बड़ी इजीली खत्म कर दिया। तो हम ये भी कर सकते हैं। बाकी सर अगर पीवट किसी ने भी यूज किया हो तो सर मैंने कई बार ये चीज फेस करी है कि जब भी लोग पीवट यूज करते हैं और उसमें कोई फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है गेट पीवट डेटा, और मेरे पास ये बहुत बार क्वेरीज आती हैं कि सर जब मैं फॉर्मूला वो नीचे ड्रैग करता हूं तो वो फॉर्मूला चेंज ही नहीं होता है। तो सर उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जब भी आप पीवट टेबल पे जाएंगे तो आप यहां देखेंगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शंस बटन दिखाता है। ऑप्शन के बगल में यहाँ पे एरो है, ये ऑप्शन के बगल में एरो है, इस एरो में जनरेट गेट पीवट डेटा को अनटिक कर दीजिए। जैसे ही मैं इसको अगर मैं टिक कर देता हूं तो मेरा फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा। मैंने दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं और इसको अगर मैं नीचे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट भी करता हूं सर देखिए मेरा फॉर्मूला चेंज ही नहीं हो रहा है, हर कहीं वो सेम फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं ये गेट पीवट डेटा अनटिक कर देता हूं तो आपका फॉर्मूला नॉर्मल वर्क करेगा। तो ये बहुत इशू आता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सर कि आगे अगर ऐसा इशू आ रहा है तो हम इसको भी टेकअप कर सकते हैं। ठीक है सर, ये ध्यान रखने वाली कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। तो पीवट इस तरीके से भी कर सकता है। पीवट के अंदर सर तो अब हमने यहाँ पे सम निकालना था तो हम किसी भी डेटा को इजीली सम भी कर सकते हैं, और वो सम सर आपका जिस बेसिस पे चाहिए उस बेसिस पे कर सकते हैं कि आपको जीएसटी नंबर के बेसिस पे चाहिए, आपको पार्टी के बेसिस पे चाहिए, आपके यहाँ पे जोन्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन के बेसिस पे हो सकते हैं, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। आप जिस बेसिस पे हो उस बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही वास्ट बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक पीवट की प्रॉब्लम है, पीवट के बेस डेटा के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो मेरा पीवट ऑटोमेटिकली पिक नहीं करता। उसके लिए आपको पीवट को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है पीवट का कि जब भी वो पीवट के बेस डेटा के अंदर कोई चेंज होगा तो मेरा वो पीवट के अंदर चेंज ऑटोमेटिकली कंसीडर नहीं होगा, उसमें आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये भी है हमारा एक पीवट जो हम इजीली वर्क कर सकते हैं पीवट के बेसिस पे। और पीवट में सर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे समराइज वैल्यू के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे सम ये पीवट हमारा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट टूल, अगर जब हमें
इंटरनल ऑडिट और ये सब करने होते हैं तो वहां पे भी काम आता है कि हमें सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है, मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। जो भी काम करना है हम वो काम कर सकते हैं। वैल्यूज आपको परसेंटेज निकालनी है, वो सब करना है, यहाँ पे हम वो सब काम भी इजीली कर सकते हैं। तो अभी रमेश सर ने हैंड रेस कर रखा है, तो सर रमेश सर का कोई डाउट है तो वो ले सकते हैं। सर अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं रमेश सर। अनम्यूट नहीं हो रहा। शैलेन जी अनम्यूट कर दीजिए सर को। तब तक सर कपिल जी का एक सवाल है कि इज देयर एनी ऑप्शन इन वॉच विंडो व्हिच हाईलाइट चेंजेस इनिशियल नंबर्स? नहीं सर, वो मैं टेकअप कर चुका और उसका ऑप्शन नहीं है सर। उसके लिए हमें प्रोटेक्टेड शीट करने के बाद। हाँ जी सर। सर जैसे आपने ये बताया, ये तो हो गया फाइनल डेटा पे एजिंग करनी। बिल्कुल। अब जैसे मैक्सिमम क्लाइंट के डेटा आते हैं टैली में, हाँ। तो जो पेमेंट रिसीव हुआ तो उसके लिए टैली से कौन सी रिपोर्ट को पिक करें कि वो एजिंग इस हिसाब से फिर उस पे वर्क कर सकें? सर टैली से कौन सा डेटा पिक करना है उसका मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज मैं टैली बहुत कम यूज करता हूँ। तो वो चीज कोई हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जो सर कोई भी हमारा कैंडिडेट हो जो टैली यूज करता है तो वो गाइड कर सकते हैं। चलो, और ये जो पेमेंट रिसीव हुआ हाँ जी सर। है ना, तो उस जैसे हमारा दो अलग अलग वर्किंग करें, तो पेमेंट रिसीव्ड हुआ और ये जो एजिंग आ गई, इनमें से उसी टाइम की एजिंग पेमेंट रिसीव्ड को माइनस कर दे, तो वो कैसे पॉसिबल है? सर आप मुझे डेटा दिखा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। बिकॉज वो एजिंग या तो सर फीफो बेसिस पे हो सकती है। सर एजिंग का बेस होता है, आइदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फीफो बेसिस होगी, ऑल टाइम फीफो सर, ऑब्वियसली फीफो होनी चाहिए, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर इनवॉइस वाइज होगी। तो सर पर्टिकुलर इनवॉइस वाइज तो वो सामने खुद मैनुअली ही कर सकते हो, बट फीफो बेसिस आप कर सकते हो। तो जैसे मैं बोल देता हूँ कि सर ये मेरे लिए लेट सपोज ये मेरी टोटल इनवॉइसेस हैं 2,94,000 के, इसमें से मैं कहता हूँ 29,000 की पेमेंट है, जिसमें से मेरी 15,000 की पेमेंट रिसीव हो गई। ये पेमेंट है, दैट शुड बी इन दी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है सर। तो आपको अगर इनवॉइसेस के साथ पेमेंट की एजिंग वो पेमेंट को सेट ऑफ करना है तो वो भी हम विद द हेल्प ऑफ पिवट से नहीं होगा सर। वो पिवट से नहीं होगा, उसके लिए हमें अलग से फॉर्मुलेस बनाने पड़ेंगे। ओके, इफ वाला इफ फॉर्मुलाज एंड सम, उसमें सर मल्टीपल फॉर्मुलेस लगेंगे, इफ लगेगा, सम इफ लगेगा और मल्टीपल फॉर्मुलास लगेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई थिंक सर कवर कर लिए हमने सभी डाउट्स। सो ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर ब्रांच आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से अपना कीमती समय दिया इंदौर ब्रांच मेंबर्स के लिए, और आगे भी आपसे इसी सहयोग की अपेक्षा है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी मेंबर्स का जिनने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। और कल जो हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा ऑटोमेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो उसके लिए सीए विजय अग्रवाल सर हमारे साथ होंगे। समय 5:30 से 7:30 ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरी मेंबर। थैंक यू सर। अगर किसी सर एक छोटा सा पॉइंट, किसी का भी अगर कोई भी डाउट हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी अवेलेबल होऊंगा आपको हेल्प कर दूंगा। बिल्कुल सर, सर का नंबर है, मेल आईडी स्क्रीन पर विजिबल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।